مسئلے کی کڑی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم جو ہے کلام خدا میں سے سبت کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے جو ان سے جو موضوع ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا وہ سبت اور رسول ہے. سبت رسولوں نے جو ہے کس طریقے سے جو ہے اس کی پیروی کی، کیونکہ مسیح کلیسیا کو یہ کہہ کے گمراہ کیا گیا کہ رسولوں نے جو ہے سبت کی جو ہے پیروی نہیں کی. مسیح کے آسمان پہ جانے کے بعد جو رسول ہیں جو ہے انہوں نے کسی بھی طور پہ جو ہے سبت کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مسیح کے جی اٹھنے کے دن کو جو ان سے اختیار کیا. ہم اس کے لیے جو ان سے اسی کو لے رہے ہیں. ہم پالوس رسول کا عمومی طور پہ جو ہے ان پر یہ الزام لگاتے ہیں، اور یہ سبت کے منکرین جو ان سے ہیں، جو خدا کے منکرین ہیں، کیونکہ سبت جو ہے یہوہ پاک کا دن ہے. سبت کو یہوہ خدا قدوس کا دن کہہ کے کلام خدا میں پکارا گیا ہے، اور یہ وہ دن ہے جو کہ جس دن کے اندر برکت رکھی گئی ہے، کیونکہ یہ یہوہ کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جو کہ پاک ہے، کیونکہ یہ یہوہ کا دن ہے. اور اسی دن کی مناسبت سے جو 1000 سالہ بادشاہت ہے، اور اس کے بعد جو آرام ہے، سبت کا مطلب آرام ہے، اس آرام میں جو ہے ہر اس شخص کو جو خدا قدوس کے احکامات کی پیروی کر رہا ہے وہ داخل کیا جائے گا. ہم پالوس رسول کو جو ہے عمومی طور پر یہ موضوع الزام ٹھہراتے ہیں، اور ان کے جو مختلف حوالے اس میں سے تلاش کر کے اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. ہم جو ان سے اس کے اوپر گو کہ بہت دفعہ کلسیوں کے خط میں، ہم جو ہے مال کے خط میں جو ہے اس کو وضاحت کر چکے ہیں، افسیوں کے خط میں، رومیوں کے خط میں. آج ہم جو ان سے عبرانیوں کے خط جو ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. جو ہم سوال جو پچھلی دفعہ ہم نے چھوڑا تھا وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سوال کو کیا ہے. اس کے اندر جو ان سے ہم پہلے اس حوالے کو دیکھ لیں اور پھر ان سوالوں میں آتے ہیں. ہم عبرانیوں کے خط 9 باب میں چلیں گے اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت کو دیکھیں گے. جب آپ عبرانیوں کی کتاب میں جاتے ہیں اس کے 9ویں باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں، تو وہاں پہ کلام خدا بیان کرتا ہے، پر ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوئے جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوئے تاکہ اب خدا کے روبرو ہمارے خاطر حاضر ہوں. اب جب یہاں پہ آپ عبرانیوں 9 باب اس کی 23ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، لکھا ہے پر ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائیں. کون سی وسیلے؟ یہ جو ابھی ہم دیکھیں گے. مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے. تو سوال جو ان سے اس کے اندر جو آ رہا ہے کہ یہ آسمانی چیزیں کون سی ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو ان سے جو سوال اس کے اندر ہے کہ کیا آسمانی چیزیں ناپاک ہیں. دو سوال جو ہے وہ ابھرتے ہیں عبرانیوں 9 باب اس کی 23ویں آیت کے اندر کہ آسمانی چیزوں سے مراد کیا ہے، اور کیا آسمانی چیزیں ناپاک ہیں جس کے لیے قربانی چڑھائی جانا ضروری ہے تاکہ اسے پاک کیا جا سکے. جب آپ اس کو عبرانیوں کی کتاب 9 باب کی 23ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ 23ویں آیت جو سی ہے، یہ اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ لیا گیا احبار کی کتاب اور اس کے 16ویں باب کی 16ویں آیت سے. پالوس رسول جو ذکر کر رہے ہیں کہ آسمانی چیزوں کی نقل، وہ جو نقل ہے اس کو پالوس رسول بیان کر رہے ہیں احبار کی کتاب 16 باب کی 16ویں آیت کو. آئیں ہم احبار کی کتاب 16 باب کی 16ویں آیت میں چلیں. وہاں پہ لکھا ہوا ہے احبار 16:16 میں، اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دیں، اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کریں جو ان کے ساتھ ان نجاستوں کے درمیان رہتا ہے. تو اگر آپ احبار کی کتاب 16 باب کی 16ویں آیت کو دیکھیں گے تو یہ جو عبرانیوں 9:23 ہے اس کا پہلے حصے کو بیان کر رہی ہے. وہ آسمانی چیزوں کی نقل، وہ نقل کیا ہے؟ وہ آسمانی چیزوں کی نقل وہ بیان کر رہے ہیں پاک ترین جو ہے مقام ہے، اور جو ان سے وہ خیمہ اجتماع ہے جو ان کے درمیان میں موجود ہے.
اب ہم جو ان سے جو جس سوال کی طرف ہم جاننا چاہ رہے ہیں، ہمیں علم ہے کہ جو موشے ہے وہ کوئی سینہ پہ خدا قدوس جو ہے انہیں حکم دیتے ہیں اور انہیں جو ان سے بنی نوع انسان کے جو گناہوں کے کفارہ ہے اس کے لیے جو ان سے انہیں قربانیوں کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے قربانیاں دی جائیں گی۔ جب آپ یہ 9ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو 9واں باب جو ان سے ہے یہ بیسیکلی یہ جو بیان کرتا ہے عبرانیوں کا خط جو پالوس رسول نے لکھا ہے، جو 9ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، یہ بیان کرتا ہے خیمہ اجتماع کو، یہ اس بیابان کو بیان کرتا ہے جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلی ہے اور وہ ابھی جو ان سے بیابان میں اور خدا قدوس جو ان سے آسمان کو لپیٹ کر کوئی سینہ کی چوٹی پر اتارتے ہیں اور وہاں پہ اپنے ہاتھ کی انگلی سے پتھر کی 2 لوہوں پر وہ عہد جو بنی نوع انسان کے درمیان خدا قدوس اور انسان کے درمیان باندھا گیا ہے اس کو تحریر کرتے ہیں، اور کلام خدا بیان کرتا ہے کہ اس عہد میں 10 احکام کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو جو 10 احکام دیے گئے ہیں جنہیں 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، یہ پتھر کی 2 لوہوں پر، یہ وہ واحد کلام ہے پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفے کی کتاب تک جو خدا قدوس نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے خود تحریر کی ہے۔ باقی تمام کلام خدا قدوس کا انہوں نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے بزرگوں کے ذریعے سے، شاگردوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے پہنچایا۔ شیطان کا جو حربہ ہے وہ خدا قدوس کو جو ان سے وہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور اسی وجہ سے شیطان نے 10 احکام کو اپنے پیروکاروں کے لیے جو ان سے وہ ٹھہرایا کہ یہ اب آپ کے لیے نہیں ہے۔ خدا کے پیروکاروں کے لیے خدا کے 10 احکام، خدا کا عہد قائم ہے۔ یہ وہ شادی ہے جو خدا، یہ وہ ملاپ ہے جو خدا اور انسان کے درمیان ٹھہرایا گیا۔ جب آپ عبرانیوں کا 9ویں باب کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اس خیمہ اجتماع کا ذکر ہے، اس خیمہ اجتماع کا جسے خدا قدوس نے موشے کو جو ان سے حکم دیا، نہ کہ موشے کی اپنے ذہن کی اختراع ہے، خدا قدوس کی طرف سے موشے کو حکم دیا جاتا ہے کہ عین اسی طریقے سے جیسا آپ کو دکھایا گیا۔ اب دیکھنے سے مراد جو سی ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے، یہ وہ عکس ہے جو آپ کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، جو کہ آپ کی سوچ کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ اس طریقے سے جو سے آپ نے بیان کرنا ہے۔ اب یہ کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ کیونکہ خدا جو ان سے وہ ترتیب کے خدا ہے، کلام خدا بیان کرتے ہیں خدا ترتیب کے خدا ہے۔ خدا ہر اس بات کو جو کہ ہونے والی ہوتی ہے اس کا عکس جو ان سے پہلے سے بیان کر دیتے ہیں، اس کا جو پیٹرن ہے، اس کا جو امیج ہے وہ خدا قدوس دے دیتے ہیں۔ یہ قربانیاں جو ان سی ہیں ان کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، ان کا مقصد کیا ہوگا، یہ پرپس کیا ہوگا، کیوں جو ان سے یہ کی جائیں گی، کب تک کی جائیں گی، یہ اس لیے موشے کو کہا گیا تھا کہ عین اسی طریقے جیسا آپ کو بتایا گیا ہے، جیسا آپ کو دکھایا گیا ہے، جو آپ کے ذہن میں نقش کیا گیا ہے، عین اسی کے مطابق آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اور جب آپ خیمہ اجتماع کو دیکھتے ہیں تو خیمہ اجتماع کی ترتیب کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ صلیب کو جو ان سے بیان کرتی ہے۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو قربانی ہے، جو حتمی قربانی ہے، وہ صلیب پر دی جائے گی۔ اب جب آپ اس کو سیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہیکل کی تعمیر تھی، ہیکل خدا قدوس کی طرف سے حکم نہیں تھا، بلکہ داؤد نبی کی اپنی جو انسی ہے وہ خواہش تھی، اور وہ خواہش اس بنا پہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ خدا قدوس خود وہ محلوں میں رہتے ہیں اور خدا قدوس کے عہد کا صندوق جو ان سے وہ مناسب جگہ اس کے لیے بنائی جائے، اور اس لیے داؤد نے خدا سے جو ان سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں
उस अहद के संदूक को जो बनी नौ इंसान के साथ आपने अहद बांधा है हमारे बावजदाद के साथ, उसको उसके लिए हैकल तामीर की जा सके। आए हम इब्रानियों 9 बाब की पहली 10 आयत को देखें और सीखें कि उनमें लिखा क्या हुआ है। जब आप इब्रानियों के खत 9 बाब उसकी पहली 10 आयत को देखते हैं तो यहां पे आपको जो है जो तरीकेकार दिया गया है वो इबादत का तरीकेकार दिया गया। अब बहुत सारे लोग जो उनसे हैं उनसे जब कहा जाए कि इबादत का एक मखसूस तरीकेकार है तो वो कहते हैं जी कलाम खुदा में कहां पे लिखा हुआ है। खुदा ने इबादत का मखसूस तरीकेकार दिया है, खुदा ने हर चीज का तरीकेकार दिया है। अफसोस की बात है कि खुदा के कलाम को पाने वाले उससे दूरी के बायस उसको समझ ना पाए और वो गैर कौम उन्होंने ना समझी की हालत में भी उन्होंने अपना तरीकेकार अख्तियार कर लिया। आए हम उस इबादत के तरीकेकार को देखें जो इब्रानियों के खत 9वें बाब की पहली 10 आयत में हमें मिलता है। लिखा है गर्ज पहले अहद में भी इबादत के अहकाम थे। अब ये कहते हैं कि जी इबादत का तरीकेकार नहीं है, तो इब्रानियों 9वां बाब पहली आयत ये आपको बयान कर रही है इबादत का तरीकेकार दिया गया था। ऐसे ने सख्त मोशे को तंबीह की गई कि जैसा आपको दिखाया गया है, जैसा आपके ज़हन में नक्श किया गया, ऐन उसी के मुताबिक, उसके अंदर तब्दीली नहीं करनी, क्योंकि वो उसकी रीजन है। बनी नौ इंसान के साथ मिलाप हो रहा है खुदा का। लिखा है गर्ज पहले अहद में भी इबादत के अहकाम थे और ऐसा मकदस जो दीनवी था। ये मकदस जो उनसे ऐसे नहीं दिया गया था, इसलिए दिया गया था ताकि आप जिंदा खुदा की इबादत उस तरीकेकार के मुताबिक जिस तरह खुदा ने बताया वो कर सके। गर्ज पहले अहद में भी इबादत के अहकाम थे और ऐसा मकदस जो दीनवी था, यानी एक खैमा बनाया गया था, अगले में चिरागदान और मेज और नजर की रोटियां थी और उसे पाक मकान कहते थे। उसे पाक मकान कहते थे। कोई शख्स नापाकी की हालत में वहां पे दाखिल नहीं हो सकता। इबादत का असूल है। और दूसरे पर्दे के पीछे वो खैमा था जिसे पाक तरीन कहते हैं। से दो हिस्से थे, पाक मकान और पाक तरीन, और दोनों में फर्क क्या है? उसमें सोने का ऊदसोस और चारों तरफ सोने से मंडा हुआ ऐद का संदूक था पाक तरीन मकान में। इस आयत को ज़हन में रखिएगा। ये जो तरीकेकार दिया गया, ऐसे नहीं मोशे को कहा गया कि ऐन जैसा आपको दिखाया गया है। मोशे के ज़हन में अक्स डाला गया है कि ये खैमा किस तरीके से होगा, कितने हिस्से होंगे, क्यों होंगे और उसकी वजह क्या होगी। लिखा है चौथी आयत में, उसमें सोने का ऊदसोस और चारों तरफ सोने से मंडा हुआ ऐद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबा और फूला फला हुआ हारून का असा और अहद की तख्तियां थी। अहद की तख्तियां। और आपको इल्म है कि अहद में 10 अहकाम के अलावा और कुछ नहीं था। तो अगर आप ये 10 अहकाम अपने ऊपर वाजिब नहीं गर्दानते तो आपका खुदा से कोई अहद नहीं है। आपने अपने आप को खुदा के अहद से अलहदा कर लिया।
और उसके ऊपर जलाल के क्रोबी थे जो कफारा गाह पर साया करते थे। इन बातों के मुफस्सल बयान करने का यह मौका नहीं। छठी आयत बयान करती है, जब ये चीजें इस तरह बन चुकी तो पहले खैमा में तो काइन हर वह दाखिल होते और इबादत का काम अंजाम देते हैं, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काइन ही साल भर में एक बार जाते हैं और बगैर खून के नहीं जाते, जिसे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजरानते हैं। यानी पहला जो पाक मकान है उसमें जो कायन वो जाते हैं उस इबादत के असूल के मुताबिक जो कि उन्हें बयान किया गया, लेकिन दूसरे के अंदर साल में काहिन नहीं जा सकते, सरदार काहिन जाएंगे और बगैर खाली आदमी लेके जाएंगे, खून लेके जाएंगे। लिखा है, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काइन ही साल भर में एक बार जाते हैं और बगैर खून के नहीं जाते, जिसे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजरानते हैं। तो मोशे को जो चीज दिखाई गई है, जो अक्स मोशे के ज़हन में नक्श किया गया, वो बताया गया था कि खून बहाए बगैर माफी नहीं होगी, खून बहाए बगैर माफी नहीं होगी। क्यों जा रहे हैं सरदार काइन? आए एक मरतबा फिर पढ़ें। लिखा है, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काइन ही साल भर में एक बार जाते हैं और बगैर खून के नहीं जाते, क्योंकि खून के बगैर माफी नहीं है, जिसे अपने वास्ते वो खुद खताकार हैं और उम्मत की भूल चूक कलीसिया के गुनाहों की माफी के लिए वास्ते गुजरानते हैं। इससे रूह कुद्दस का यह इशारा है। आपको सिखाया क्या जा रहा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है पाक मकान की राज जाहिर नहीं। अब आप शायद आपके लिए ये महज अल्फाज हो, इससे मुराद जो रूह कुद्दस बता रहे हैं वो कह रहे हैं पहले खैमे को गिराना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक पहला खैमा गिरेगा नहीं, क्या नहीं होगा? पाक मकान की राज जाहिर नहीं हुई। किस खैमे की बात कर रहे हैं? आए 9वीं आयत को देखें। वो खैमा मौजूदा जमाना के लिए एक मिसाल है और इसके मुताबिक ऐसी नजरें और कुर्बानियां गुजरानी जाती हैं जो इबादत करने वाले को दिल के एतबार से कामिल नहीं कर सकती। तो बनी इस्राएल जो हर साल कुर्बानियां चढ़ा रही है अपने गुनाहों की माफी के लिए, यौम कफारा के दिन जब सरदार काहिन खून लेकर जो है अपने और उम्मत के वास्ते पाक तरीन मकान में दाखिल हो रहे हैं ताकि उनके गुनाहों की माफी तलब की जा सके, माफी तो मिल जाएगी लेकिन उनके दिल जो उनसे वो पाक नहीं हुए, उनके दिल पाक नहीं हुए। दिल का बदल जाना जरूरी है। जब तक दिल के ऊपर जो उनसे हैं अहकाम नहीं लिखे जाएंगे तब तक दिल नहीं बदलेगा। क्या लिखा हुआ है? वो खैमा मौजूदा जमाना के लिए एक मिसाल है और इसके मुताबिक ऐसी नजरें और कुर्बानियां चढ़ाई जाती थीं जो इबादत करने वाले को दिल के एतबार से कामिल नहीं कर सकती। ये कुर्बानियां दिल को कामिलियत नहीं बख्श रही थी। दिल जो गुनाह का जो उनसे मंबा है, जो हीलाबाज है, वो फिर खुदा से दूरी इख्तियार कर लेता था।
इसलिए कि वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों के बिना पर जिस्मानी अहकाम है जो सलाह के वक्त तक मुकर्रर किए। बहुत जरूरी था कि मोशे जो हैं वो क्या करें, ऐन उसी तरीके के मुताबिक जैसा खुदा ने उन्हें दिखाया है उनके ज़हन में नक्श किया। दिखाने से मुराद नक्श करना, कि किस तरीके से बनी नो इंसान, क्योंकि अहद बांध लिया है खुदा ने, और खुदा को इल्म है कि इंसान अहद तोड़ेगा और बार बार तोड़ेगा, और जब अहद टूटेगा तो उसकी सजा होगी। और आप देखते हैं बनी इसराइल को सजा मिली, और इस सजा की माफी के लिए बनी इसराइल को जो उनसे वो ये असूल बताए गए, आपने कैसे करना है। कलाम खुदा जो उनसे इब्रानियों के खत, इस खत के अंदर खून के जरिए माफी को जो है 12 मरतबा इस बाब के अंदर, 9वें बाब के अंदर बयान करता है। ये जो इबादत का तरीका दिया गया है, आपने कैसे इबादत करनी है, ये एक पैटर्न है। क्यों जो उनसे आपको सबक दिया गया, एक पैटर्न दिया गया। आप कहते हैं जी किसी भी दिन जाके इबादत कर लें, आपको किसने रोका है इबादत ना करें किसी भी दिन? आपको किसने रोका है कि दिन में 2 दफा 3 मरतबा 10 खुदा का नाम ना लें? पर खुदा की तरफ से एक पैटर्न दिया गया, एक तरतीब मुहैया की गई। आए 22वीं आयत में चलें, इब्रानियों के खत 9वें बाब की 22वीं आयत लिखा हुआ है, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। खून बहाना बताया जा रहा है कि आपके गुनाहों की माफी के लिए खून का बहना बड़ा जरूरी है। खून का बहना बड़ा जरूरी है। हम ये जो सीखना चाह रहे हैं वो 23वीं आयत में देखना चाह रहे हैं, वो आसमानी चीजें क्या हैं और उनकी पाकीज़गी किस तरीके से मुमकिन होगी। अभी तक जो हम सीख आए हैं वो ये सीखा है कि किसी भी चीज की नापाकी को दूर करने के लिए खून का बहना जरूरी है, और उस खून के बहाने के लिए एक तरतीब दी गई, और उस तरतीब के अंदर खैमा जो उनसे रखा गया, और उस खैमे के 2 हिस्से किए गए, और उस दूसरे हिस्से के अंदर अहद का संदूक आपको नजर आता है। दूसरे हिस्से के अंदर अहद का संदूक है। अभी तक आपने ये सीख लिया है कि खून बहाए बगैर कुर्बानी मुमकिन नहीं, खून बहाए बगैर माफी मुमकिन नहीं। मसला इसके अंदर क्या है? मसला इसके अंदर ये है कि जब सरदार कायन जाते थे तो वो खैमा इज्तिमा की पाकीज़गी के लिए, अपने लिए और कलीसिया की पाकीज़गी के लिए दुआ करते थे। लेकिन कलाम खुदा हमें बताता है कि इससे उनके दिलों की पाकीज़गी नहीं हो रही थी। मसला ये था, और ये उस वक्त मुमकिन नहीं था जब तक कि पहला खैमा गिराया नहीं जाएगा। हमें जो उनसे यहां पे 2 चीजें जो है बताई गई हैं। हमें बताया गया है कि माफी तो है पॉसिबल, और उसके लिए खून का बहना जरूरी है, और इसलिए मोशे को ताकीद की गई थी कि ऐन उसी तरीके से जैसा जो कुछ आपको दिखाया गया है उसी के मुताबिक आपने करना है।
लेकिन पहले तरीके के अंदर जो उनसे जब सरदार काहिन जो हारून थे जब वो जाते थे तो वो साल में एक मरतबा उम्मत की माफी होती थी, तलब की जाती थी। खैमे इज्तिमा की पाकीज़गी के लिए और सरदार काहिन की अपनी पाकीज़गी के लिए, लेकिन दिलों की पाकीज़गी नहीं होती थी। दिलों की पाकीज़गी के लिए उससे बेहतर कुर्बानी रिक्वायर्ड थी, और दिलों की पाकीज़गी के लिए उससे जो बेहतर कुर्बानी रिक्वायर्ड थी वो खुदा को एक ऐसा बदन तैयार करना था जो गुनाह ना करे। अब जब हम यहां पे आसमानी चीजों की नकल को देखते हैं, कॉपीज को देखते हैं, लफ्ज जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है, ये यूनानी जुबान का लफ्ज है G5262, G5262, हुप्पा डेगमा, हुप्पा डेगमा, हुप्पा डेगमा जो उनसे इसका मतलब है ऐसी चीज को आश्कारा करना, उसकी तरफ इशारा करना जो वजूद में आने वाली, उसके अक्स को दिखाना। अब वो जो कॉपी होती है वो कॉपी जो सी है टेम्पररी होती है, मुश्किल नहीं होती, आर्जी होती है। उस वक्त आर्जी रहती है जब तक कि असल जो सी है उसका वजूद नहीं हो जाता। तो ये जो कुर्बानियां दी गई थी जिसका अक्स मोशे के ज़हन नशीन कराया गया, जिसके मुताबिक खैमा इज्तिमा बनाया गया, जिसके मुताबिक कुर्बानियां गुजरानी गई, जिसके मुताबिक गुनाहों की माफी जो उनसे वो तलब की गई, जब असल जो है कुर्बानी हुई है तो ये कुर्बानियां जाती रही। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं अब किसी और कुर्बानी की जरूरत बाकी नहीं रही। अब जब ये कुर्बानी होती है जो असल कुर्बानी है, तो इसके अंदर आप देखते हैं कि इसके अंदर एक नया अहद जोन से इस कुर्बानी के जरिए से, क्योंकि पहली कुर्बानी जोन सी थी वो पुराने अहद जो कि पत्थर की दो लोहों पर लिखा गया है, और वो पत्थर की दो लोहों पे जो अहद बांधा गया है वो कहां पे जोन से लिखा गया, पत्थर की दो लोहों पर। स्टेटमेंट क्या है, 10 से काम। लोकेशन क्या है, स्टोन, टैबलेट ऑफ स्टोन, पत्थर की दो लोहें। अब जो उनसे जो अहद बांधा जाएगा, क्योंकि वो दिल को जो उनसे तब्दील नहीं कर रहे थे, अहद तो खुदा का बंधा हुआ है इंसान के साथ, लेकिन दिल जो उनसे माफी भी मांग लेते थे, कुछ देर के लिए खुदा की तरफ रुजू भी कर लेते थे, लेकिन दिल से रुजू नहीं कर पाते थे। उसके लिए जरूरी था कि एक ऐसा खैमा तैयार किया जाए जो कि गुनाह ना करे। ये खैमा बदन है, और उसके लिए कि वो जब गुनाह ना करे उसके दिल की तब्दीली जरूरी है, और दिल की तब्दीली के लिए दिल के ऊपर अहद की बातों को लिखना जरूरी है। तो ये नए और पुराने अहद नामे में फर्क जो उनसे जगह की तब्दीली है।
लोगों को यही इल्म नहीं है, इसी बात से धोखा दिया गया कि पुराना ऐहदनामा 10 अहकाम है और नया ऐहदनामा में 10 अहकाम नहीं है। नया ऐहदनामा और पुराने ऐहदनामे का फर्क सिर्फ ये है जगह की तब्दीली। पहले पत्थर की 2 लौहें थी जिससे दिल जो उनसे है वो बार बार गुनाह कर रहा था, और नए ऐहदनामे में वही स्टेटमेंट, वही 10 अहकाम दिल पे लिखे जाए। अब ये खैमा इज्तिमा जो दिया गया, खुदा ने इजाजत दी सरदार काहिन के जरिए से कि तुम मेरी हुजूरी में आ सकते हो साल में 1 मरतबा बनी नौ इंसान के गुनाहों की माफी के लिए। मेरे आगे सर बसजूद हो सकते हो और अपने गुनाह की माफी तलब कर सकते हो। लेकिन आसमान के अंदर आसमान खुदा का तख्त है। जब आसमान जमीन पर उतारा जाएगा, जब जमीन पर खुदा की बादशाहत कायम होगी, तब जो उनसे बैलों और बछड़ों की कुर्बानियों के खून से तुम मेरी हुजूरी में नहीं आ सकेगा। उसके लिए बहुत जरूरी है मेरी हुजूरी में आने के लिए एक ऐसी कुर्बानी दी जाए जिससे तेरा दिल जो उनसे है वो साफ हो जाए। खुदा की हुजूरी में आने के लिए बहुत जरूरी था कि दिलों की तब्दीली हो, और मोशे को इसीलिए ये सारी चीजें पहले बताई गई थी कि आपने ये चीजें करनी है ताकि लोग इस बात पर तैयार हों कि उनके दिल जो है तब्दील हो सके। और ये किसके जरिए हुआ है? ये बैलों और बछड़ों के खून के जरिए से नहीं हुए। इसीलिए कलाम खुदा बयान करता है, लिखा है, हम चलेंगे इब्रानी 9 बाब की 24वीं आयत में। लिखा है, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुए। मसीह उस खैमा इज्तिमा में दाखिल नहीं हुए। खैमा इज्तिमा क्या है? खैमा इज्तिमा इसलिए दिया गया ताकि वहां पे खुदा की हुजूरी को महसूस किया जा सके। खुदा का तख्त आसमान में है। मोशे की दरख्वास्त पर क्या है, खुदा आप हमारे हुजूरी में ठहरे ताकि हम गुनाह ना करें। खुदा ने कहा खैमा इज्तिमा बनाए, लेकिन तुम साल में 1 मरतबा सरदार काहिन तमाम लोगों के गुनाहों की माफी के लिए मेरे पास हाजिर हो। जमीन पर इजाजत दे दी, लेकिन आसमान के अंदर गुनाहों की माफी के लिए बैल और बछड़े का खून लेकर नहीं जाया जा सकता। इसलिए 9वें बाब की 24वीं आयत बयान करती है, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुए जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान में दाखिल हुए ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। ये है वो
قربانی جس کے ذریعے سے اب اگر میں خدا کی حضوری میں جھکا رہا، آپ خدا کی حضوری میں جھکے رہے اور ہمارے دلوں کو تبدیل کیا گیا اور ہمارے دلوں کی تختی پر 10 کام لکھ دیے گئے، تو ہم خدا کی حضوری میں ٹھہر سکیں، ہم آسمان پر اٹھ کر خدا کا استقبال کر سکیں۔ لکھا ہے یہاں پہ فرق آپ دیکھیں 25ویں آیت میں، یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کریں جیسا کہ ہر سال قربانی دینی پڑتی تھی، جس طرح سردار کا پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتے ہیں، ورنہ بنائے عالم سے لے کر ان کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر آپ زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوئے تاکہ اپنے آپ کو قربان کر کر گناہ کو مٹا دیں۔ گناہ نہیں مٹ رہا تھا، گناہ کی معافی ہو رہی تھی۔ تو آسمانی چیز کیا ہے؟ کس چیز کی پاکیزگی ضروری تھی؟ پاکیزگی کو آسمان کے اندر گندگی نہیں تھی، گندگی تھی اس شخص کی غلاظت جب اس شخص کو خدا کے حضور میں حاضر کیا جاتا۔ اس کی پاکیزگی ضروری تھی، اور اس کی پاکیزگی کے لیے مسیح نے کیا کیا؟ اپنا خون بہایا۔ اس خون بہانے کی وجہ سے کیا ہوا؟ گناہ مٹ گیا، اور جب گناہ مٹ گیا تو اب آپ اس آسمان اور زمین کے خدا کی حضوری میں حاضر ہو سکتے ہیں، ورنہ میں اور آپ کبھی بھی خدا کی حضوری میں حاضر نہ ہو سکتے۔ کلام خدا ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ جو ان سے ہیں ان کی معافی جو ان سی ہے ملی ہے، لیکن مٹائے نہیں گئے۔ اگر مٹ جاتا گناہ تو میں پھر کبھی گناہ نہ کر پاتا۔ گناہ کی معافی اور گناہ کا مٹ جانا دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ کسی چیز کو مٹا دیں تو قائم نہیں رہتی، اور ایک چیز آپ نے غلطی کی ہے اور اس کی معافی مل گئی ہے، غلطی کا ریکارڈ موجود ہے، صرف اس کی آپ کو سزا نہیں ملی، آپ کو معافی ملی۔ تو یہ فرق جو ان سے ہے وہی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا کہ معافی سے کیا مراد ہے اور گناہ کا مٹ جانا سے کیا مراد ہے۔ کیوں مسیح کا آنا ضروری تھا؟ اس لیے ضروری تھا تاکہ میں اور آپ جب خدا کی حضوری میں داخل ہوں، جب آسمان میں داخل ہوں، تو ہم گندگی کی حالت میں داخل نہ ہوں، ہم گناہ کی حالت میں داخل نہ ہوں، کیونکہ اس خون کے وسیلے سے ہمارے گناہ مٹ چکے ہوں گے، ہمیں ایک نیا بدن دیا گیا ہوگا، پرانا خیمہ جو ان سے وہ نابود ہو چکا ہوگا،
सिर्फ वही शख्स जिससे नया जिस्म दिया जाएगा, और वो कौन सा जिस्म है? रूहानी जिस्म, ये जिस्मानी नहीं। रूहानी जिस्म, आप जाएं और वहां पे पढ़ें, लिखा हुआ है कि एक दम में हम तब्दील हो जाएंगे। दुआ करें कि उसमें आप और मैं शामिल हूं, वरना गुनाह की माफी मिली है, मिटे नहीं है, रिकॉर्ड मौजूद है। और गुनाह की माफी के बावजूद हम गुनाह पे गुनाह करते हैं और फिर माफी मांगते हैं और फिर खुदा से तलब करते हैं और खुदा से कहते हैं हमारे गुनाह हमारे जिम्मे ना लगाएं। आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा आए खुदा मेरे गुनाह मिटा दें। क्योंकि अभी तक वो वक्त नहीं आया जब नया अहद बांधा जाए, जिससे गुनाह जो उनसे है वो मिट जाए। इस इब्रानी खत 9वें बाब की 23वीं आयत में दो जिस्मों का जिक्र है। जिस्मानी जिस्म, जिसके गुनाह को बकरे और बछड़े और बैलों के खून से माफी मिलती है, और एक रूहानी जिस्म है जिसकी पाकीज़गी के बिना पर उसके गुनाह मिटाए गए हैं, और अब वो इस काबिल है कि अपने खुदा की ज़ुरी में नापाकी की हालत में नहीं, पाकीज़गी की हालत में दाखिल हो सके। खुदा ने ज़मीन पर माफ़ी की सूरत में तो ये इजाज़त दे दी कि आप मेरी ज़ुरी में साल में एक मरतबा आ सकते हैं, लेकिन अगर मेरे साथ बसेरा करना है तो तेरे दिल की तख्ती पर मेरे अहकामात की मौजूदगी ज़रूरी है, ताकि तेरे गुनाह मिट सकें और तू मेरी हुजूरी में ठहर सके। हम शुक्र करते हैं खुदा का कि खुदा हमें तौफीक बख्शते हैं कि हम उनके कलाम को जो है सीखने के लिए बैठते हैं। ये 10 से काम खुदा का अहद है। ये वो अहद है जो खुदा ने अपने हाथ की उंगली से पत्थर की दो लौहों पर तहरीर किया। हम देखते हैं कि ये अहद जो उनसे वो अहद के संदूक में रखा गया, और उस अहद के संदूक को खुदा ने कहा इसे पाक तरीन मकान में रखें, इसके ऊपर करोबी बनाएं, वहां मेरी हुजूरी होगी आए मोशे, वहां पे मैं बातें किया करूंगा। सरदार का इन साल में एक मरतबा बकरे बछड़े बैलों का खून लेकर आएगा इस खेमा की पाकीज़गी के लिए, अपनी पाकीज़गी के लिए, और बनी नौ इंसान के गुनाहों की पाकीज़गी के लिए। आज वही अहद का संदूक आसमान में मौजूद है, और इसीलिए हमारे सरदार काहिन आसमान में दाखिल हुए हैं, ताकि हमें ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी बना सकें। ये है वो आसमानी चीज़ों की पाकीज़गी। ये मैं हूँ, ये आप हैं, जिनके मुतालिक कहा गया है कि आसमानी चीज़ों की पाकीज़गी। आए मुकाशवा की किताब में देखें अहद का संदूक कहाँ पर है।
11वें बाब की 19वीं आयत। लोग कहते हैं अहद का संदूक यहाँ पे है, वहाँ पे है। कलाम को खोलें, अहद का संदूक खुदा के हाथ की उंगली से तहरीर करदा वो अहद है, और खुदा अपने अहद को पामाल नहीं होने देंगे। उसकी हिफाजत का जिम्मा खुदा के पास है। और मुकाशवा 11वें बाब के अंदर उसका जिक्र है। मुकाशवा 11वां बाब 19वीं आयत बयान करती है, और खुदा का जो मक़दस आसमान पर है वो खोला गया, और उनके मक़दस में उनके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और आवाज़ें और गरजें पैदा हुईं, और भूचाल आया और बड़े ओले पड़े। ऐसे नहीं मोशे को कहा गया कि ऐन उसी तरीके से ये खैमा इज्तिमा बनाना जैसा आपके ज़हन में नक्श किया गया, और पाक तरीन मकान में अहद का संदूक रखना, क्योंकि मोशे को दिखाया गया कि खुदा जिस्म अख्तियार करेंगे, ज़मीन पर आएंगे, खून बहाएंगे और अपना खून लेकर मक़दस में दाखिल होंगे, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं होगा, और एक ही बार दाखिल होंगे, ताकि मैं और आप ज़मीनी नहीं आसमानी ठहर सकें और पाकीज़गी हासिल कर सकें। खुदा आप सबको सबक मुबारक करें। आमीन।